سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف مخدوم فیصل صالح حیات کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی پاکستان مسلم لیگ نون نواز کو جوائن کرنے کے لیے، اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے پورے گروپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی امید ہے کہ مخدوم صاحب اور ان کے گروپ کی شمولیت سے پی ایم ایل این کو خصوصی طور پر ضلع جھنگ اور چنیوٹ میں کا ہلکا اثر ہے، وہاں پر بھی پی ایم ایل این کو مضبوطی حاصل ہوگی. آج یہ سفر ہم نے اکٹھے طے کرنے کا جو یہاں پر اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور ہم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ ہم پاکستان کی خدمت کرنے کا عزم لے کر ہم چلے ہیں. اور نواز شریف کی قیادت میں جو ہمارے قائد ہیں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ اس نئے سفر کا آغاز ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مخدوم صاحب کا گھرانہ ایک معروف معتبر سیاسی گھرانہ ہے، جن کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی شمولیت سے نہ صرف پی ایم ایل این کو تقویت ملے گی، بلکہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت کو سپورٹ ملے گی اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم الیکشن کے میدان میں اترا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم بھرپور محنت کریں گے، پاکستان کی عوام کی خدمت کا ایک دل سے وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نواز شریف انشاءاللہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. اور ان کا جو تجربہ وہ خالی ایک اب سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹسمین ہے اور ان کا تجربہ وسیع تجربہ، اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں ہم شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. شکریہ. بس جنگ سے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف شاہ جیونا آمد. سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف مخدوم فیصل صالح حیات کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سابق وفاقی وزیر مخدوم فیصل صالح حیات نے میاں شہباز شریف کو خوش آمدید کہا. میاں شہباز شریف نے دربار شاہ جیونا کروڑیا کے دربار پر حاضری دی، دربار پر چادر چڑھائی اور مخدوم فیصل صالح حیات کے ہمراہ دعا کی. شہباز شریف کی جانب سے فیصل صالح حیات کو نون لیگ جوائن کرنے پر خوش آمدید کہا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا، آج سے سفر شروع کرنے کا اعلان کرتا ہوں، پاکستان کی خدمت کرنے کا عزم لے کر ہم چلیں گے. ان کا مزید کہنا تھا، شمولیت سے پی ایم ایل این کو قوت بھی ملے گی، الیکشن کیمپین میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے گا. آپ کو بتا رہے فیصل صالح حیات کو نون لیگ میں شمولیت پر مبارکباد دی گئی. فیصل صالح حیات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا. شہباز شریف کی جانب سے فیصل صالح حیات کو نون لیگ جوائن کرنے پر خوش آمدید کہا گیا. ان کی جانب سے مزید کہا گیا، آج سے سفر شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنے کا عزم لے کر چلے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا، فیصل صالح حیات کی شمولیت سے مسلم لیگ نون کو قوت ملے گی. نواز شریف چوتھی بار پی ایم ایل این کے پی ایم بنیں گے. الیکشن کیمپین کو بھرپور طریقے سے چلایا جائے گا. فیصل صالح حیات کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں، جنگ سے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شاہ جیونا آمد. مزید تفصیلات اسی حوالے سے جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائیے گا. جی بالکل، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف شاہ جیونا پہنچے اور کچھ ہی لمحے پہلے انہوں نے مخدوم ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو بھی کی. اور ان کی گفتگو سے قبل
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो झंग और इससे मुल्हिका जिला चनियोट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाएंगे और उन्होंने NA 109 से NA 108 से जो है वो इलेक्शन लड़ने का भी जो है वो ऐलान किया। इस हवाले से आज साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ये दौरा जो है वो खासा सूदमंद साबित हुआ और पिछले एक माह से झंग के अंदर यही खबरें जो थी वो गर्दिश में थी कि सैयद फैसल सालेह हयात जो हैं वो जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सैयद फैसल सालेह हयात ने इस अज़म का भी इजहार किया कि झंग के अंदर नून लीग का अच्छा खासा वोट बैंक और उनका ज़ाती वोट भी मौजूद है और इस फैसले के बाद वो ना सिर्फ इलेक्शन में बेहतर अंदाज में रिजल्ट्स दे सकेंगे बल्कि इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मखदूम फैसल सालेह हयात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है इजाफा है बहुत अच्छा है। उनका ये कहना था कि चनियोट और झंग के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है वो तक़वियत मिलेगी और आम इंतखाबात 2024 में जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना एक मंशूर रखती है तो सैयद फैसल सालेह हयात जो हैं इस हवाले से ना सिर्फ उनके मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं बल्कि वो 2 हल्कों से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिनमें PP 125 मौजूद है और NA 109 है। इस हवाले से इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह और जो झंग ही से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक अरकान असम्बली भी इस मौका पर मौजूद थे। इस सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो सवाल करने की कोशिश की और मियां शहबाज शरीफ ने किसी सवाल का जवाब दिए बगैर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो इख्तिताम की तरफ ले गए। अब मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो मखदूम हाउस से वापस रवाना हो चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर झंग की सियासत जो है वो यकसर तब्दील होगी क्योंकि झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो उनके टिकट के ऊपर सैयद मखदूम फैसल सालेह हयात का इलेक्शन लड़ना जो है ये एक अहम पेशरफ जो है वो साबित होगा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून झंग के अंदर इस तरह की सियासी वाबस्तगी नहीं रखती थी, कारकुनान में वाबस्तगी नहीं थी और इनसे मजबूत कैंडिडेट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इस हलके में जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल था। ताहम इस वक्त नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इस झंग की सियासत में एक सियासी हलचल जो है वो मचा चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर तवक्को की जा रही है कि मजीद सियासी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो सकती हैं। ताहम जिस हलके से सैयद फैसल सालेह हयात जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, उनके सियासी हरीफ जो हैं वो साहबजादा महबूब सुल्तान हैं जो कि खुद एक जो दरबार सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन भी हैं और दूसरी जानब शाहजूना के जो गद्दी नशीन हैं सैयद फैसल सालेह हयात। तो ये इंतहाई एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो मुतवक्के तौर पर हो सकता है झंग के अंदर। दूसरी जानिब जो PP 125 से भी कागजात नामजदगी सैयद फैसल सालेह हयात की जानिब जमा करवाए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पंजाब की सियासत में भी जो है वो एंट्री कर सकते हैं। ताहम आने वाले दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं क्योंकि झंग के अंदर इस तरह की तब्दीली जो है वो बड़े अरसे बाद रूनुमा हुई है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कई दहाइयों की सियासी वाबस्तगी रही है सैयद फैसल सालेह हयात की और 27 दिसंबर जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है उस दिन ये ऐलान करना जो है वो खासा मानी खेज दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिन जो है वो सियासी हवाले से खासे अहम हैं। जी फैसल सालेह हयात 2 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे, PP 125 और NA 108। अच्छा रमजान, बताइएगा इस फैसले से झंग की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, झंग एक ऐसा शहर रहा है जहां पर कोई भी सियासी पार्टी अपनी गहरी छाप नहीं रखती क्योंकि झंग में 2 दहाइयां कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा वोट बैंक मौजूद था, लेकिन सियासी तब्दीलियों की वजह से और सियासी पॉलिसीज की वजह से पिछली 2 दहाइयों में झंग के अंदर तमाम सियासतदान अपना शख्सियती वोट रखते थे जिनमें सैयद फैसल सालेह हयात हैं, जिनमें गुलाम बीबी भरवाना मौजूद हैं, जिनमें महबूब सुल्तान मौजूद हैं, जिनमें सैयदा आबदा हुसैन पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। तो इस तब्दीली से जो है वो नजर आ रहा है कि एक असर होगा क्योंकि झंग के अंदर
जो साबिक ज़मीनी इलेक्शन था जिसमें पीटीआई की जानिब से वाज़ेह बरतरी नजर आई, उस ज़मीनी इलेक्शन के बाद लोगों ने किसी न किसी सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर करना शुरू की है। ताहम ये इस तरह का बड़ा सियासत दान जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर शमूलियत अख्तियार कर रहा है तो इसके गहरे असरात होंगे। ताहम जो सैयद फैसल सालेह हयात हैं उनके पास पार्टी वोट से ज्यादा उनकी जाती शख्सियती वोट जो है वो अहम है, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास मजहबी वोट बैंक की बड़ी तादाद मौजूद है, तो इसके साथ साथ अब अगर नून लीग का वोट भी झंग के अंदर मौजूद है तो वो भी उन्हीं के हिस्से में आएगा। और मजहबी वाबस्तगी होने की वजह से जो वोटर्स हैं उनके अंदर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात की गहरी छाप भी मौजूद है। आने वाले दिनों के अंदर तवक्को की जा रही है कि मजीद सियासी हलचल जो है वो झंग में नजर आएगी, जिसके बाद इलेक्शन की हतमी शक्ल जो है वो वाज़ेह हो सकेगी कि कौन से सियासी नुमाइंदे और रहनुमा जो हैं वो अपनी बेहतर तौर पर अपने जमात का इंतखाब कर पाते हैं, क्योंकि इससे कबल किसी भी सियासी कायद की जानिब से झंग का इस तरह का दौरा जो है वो नहीं किया गया। तो तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर झंग में सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी और जो सियासतदान हैं और जो ज़ीरक सियासतदान हैं वो बेहतर अंदाज में अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करते हुए आम इंतखाबात 2024 में जो टर्न आउट है उसको बेहतर कर सकेंगे। जी, रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं फैसल सालेह हयात के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से मीडिया गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने कहा फैसल सालेह हयात को नून लीग में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। फैसल सालेह हयात के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। मज़ीद शहबाज शरीफ का कहना था फैसल सालेह हयात ने नून लीग में शमूलियत की दावत कबूल की। उनका कहना था मुल्क भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे।